हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ रिजर्व इंडिया। द रिजर्वेस इन द इंडिया हियर many national park and sanctuaries has been established by a preserve to the wildlife in their natural environment. Some of this give a below along with the important species found in these is the Kaziranga sanctuary Assam one as awarded to the rhinoceros, and the Manas sanctuary is the Assam is a wild buffaloes, and the Gir forest is the Gujarat Lowen, cheetah, sambar, and the wild bears. And the Kalorong bird sanctuary is the Andhra is the pelicans of the marine birds. And the Dakogama sanctuary, Jammu and Kashmir, there are Kashmiri stag, Himalaya, Thar, and the wild goats, sheep, and anthropes. And the Bandipura sanctuary is the Karnataka, India, binoms, elephant, and the langurs. And the next here is the Kanha is a national park, is a Madhya Pradesh, is a tiger, leopard, and the wild dogs. There is a protection area. And the Simlipal National Park, Odisha, is the mangroves, marine turtles, and the lay eggs. And the Bharatpura Bird Sanctuary is the Rajasthan, duck and herons. And the Kolar Battles National Park is the Uttaranchal, is a tiger, walking, and deer, sambar, and the wild bears. The rhino is a monkey. And Jala Parvara is and sanctuary is the West Bengal is a rhinoceros. There is the most important sanctuaries here. तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में वन्य जीवन आरक्षित क्षेत्र यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन इंडिया। कहते हैं वन्य जीवन उनके प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई राष्ट्रीय पार्कों का अभिवर्णों की जो है स्थापना की गई है। बहुत से जो है पार्क बनाई गई है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है निम्न उनमें पाए जाने वाले प्रजातियों के साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है काजीरंगा अभयारण्य यानी असम में है, एक सिंगी वाला गेंडा के लिए ये काफ़ी संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उसके बाद है मानस अभयारण्य यानी असम में जो है जंगली भैंस के लिए ये आरक्षित किया गया है। और गिर वन जो है गुजरात में है, जहाँ पर सीता, चीतल, सांभर, जंगली भालू इनके लिए संरक्षण किया गया है। केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में जो है पेल्किन और अन्य समुद्री पक्षियों के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद डचीगामा अभयारण्य यानी जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ पर कश्मीरी बारहसिंगे, जगह हिमालय तेरह और जंगली बकरियाँ, भेड़, हिरन के लिए ये संरक्षित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है बदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, जो भारतीय ग्वाल यानी वाइसन जो है हाथी, लंगूर के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य केरल में है, ये हाथी, बकरिंग, हिरन और संभार के लिए ये क्षेत्र जो है संरक्षण किया गया है। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा है, ये बाघे, तेंदुआ और जंगली कुत्ते के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों और मोगरा पुरान अंडे देने वाले समुद्री कछुआ के लिए ये जो है संरक्षित किया गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी राजस्थान में जो है बत्तख और बगुला के लिए ये संरक्षण कराने का एक उद्यान है। कहते हैं कपिल राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में जो है बाघ, बरकिंगा, हिरन और सांभर, जंगली भालू, रीछ आदि के लिए ये बनाया गया है। अगर देखा जाए जलपुरा पारा में अभयारण्य पश्चिमी बंगाल में गेंडा के लिए संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट इज एजेंसी एंड डीलिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। There are various agencies both at a national and international level which take care of the conservation of the wildlife. Some of this given below. The first is the Indian Board of Wildlife, means IBWL. It advises state government as wildlife protection, and second is the Constitution of India include of forest and wildlife protection, and third is the World Wildlife Fund of the Nature is meant WWF. It is an international organization and the formed in the year is 1961 and it is engaged to the protection of the wildlife. India become a member of it is 1969 and has to be headquartered in Mumbai. It is support to the whale now is a project of tiger. And the next is the International Union of Conservation of the Nature and Natural Resources, means IUCN. The World Conservation of Union WCU is engaged in the protection of the wildlife and their habitat. And the last is the conservation of the international trade is a endangered species, means CITES. Sits is on the international organization to check the trade of protection from the endangered animal. India became a party of the CITES in the 1976.
and there is a regulation of the conservation. The various act the law has been passed in the Indian Constitution is the conservation of natural resource, and some of them are here. The Environmental Protection Act is in 1986, and the Forest Conservation Act is in 1980, and National Forest is a policy in 1988, and Wildlife Protection Act in 1972 and amendment in the 1991. There is the most important regulation of the conservation of wildlife. देखिए यहाँ पर जो है वन्य जीवन संरक्षण में संबंधित एजेंसियां बहुत से कार्यरत हैं, बहुत से कार्य हो भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं इन वन्य जीवन की सुरक्षा हर एक व्यक्ति के ऊपर दायित्व बनता है। ये एजेंसियां तो सिर्फ एक नाम की होती है, बैठी हुई होती है। कहते हैं एक घटना भी घटी थी कि हमने एक देखा था गाय को जो बहुत बुरी हालत में थी, उसको हमने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तभी मुझे अफसोस हुआ कि भाई ये एजेंसी इतने बड़े बड़े एजेंसी है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं मैं एक ही बात जानता हूँ, जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, इनकी प्रोटेक्शन होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें जो है जागरूक और इनके लिए सदैव ही संवेदनशील बन के रहना है और हर एक जीव की संरक्षण करने का जो है प्रण लेना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहते हैं वन्य जीव संरक्षण के संबंधी बहुत सी एजेंसियां हैं और बहुत से लोग जो है इसमें कार्यरत हैं। तो इसमें कहते हैं पहला जो यही है इंडियन बोर्ड फॉर ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी IVWL। कहते हैं प्रांतीय सरकार को वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए ये सुझाव देती है सिर्फ कि हमें क्या करना चाहिए। भारतीय संविधान में वन एवं वन्य जीवन सुरक्षा की सम्मिलित भी किया गया है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर ऑफ द नेचर यानी WWF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई और यह वन्य जीवन संरक्षण में लगा हुआ है। भारत कहते हैं सन जो 1969 में इसका सदस्य बना था, यानी 69 में इसका सदस्य बना था और इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसमें जानी मानी बाघ परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। कहते हैं एजेंसियां जो है बहुत ही कार्यरत है और बहुत ही जो है वन्य जीवन को संरक्षण भी किया है और न जाने कई जीवन की रक्षा भी किया है। उसके पश्चात है इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN। ये वर्ल्ड जो है कन्वेंशन यूनियंस ऑफ WCI वन्य जीवन व उनके आवासों को प्रशिक्षण में संलग्न करता है। उसका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी CITES जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये इंटरनेशनल है। कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि संकट आपन्न जानवरों के जो व्यापारिक उत्पादों पर रोक लगाने के लिए कहते हैं भारत सन जो है 1976 में इसका जो है सदस्य बना था। भारत भी इसका सदस्य बन चुका है और यहाँ पर तो कहते हैं कि भारत में वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने जो है आड़ी जोड़ी का जोर लगा दिया है, जहाँ पर जो है सरकार हर तरफ से प्रयत्नशील है और कहते हैं जानवर की तो हर जगह सुरक्षा हो रही है। कहते हैं उसके बाद देखा जाए तो संरक्षण के लिए बहुत से कानून भी बने हुए हैं, कानूनों की कमी नहीं है। कानून तो इतने हैं कि आपके कॉपी भी जो है भर जाएंगे, फिर भी ये कानून ख़त्म नहीं होंगे। इसमें कुछ कानून यहाँ पर दिए गए हैं। संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। भारतीय संविधान में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनेक कानून अधिनियम पारित किए गए हैं। इसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 बनाए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 भी बनाई गई है और राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 भी बनाई गई है। और कहते हैं वन सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 व इनमें 1991 भी सुधार किया गया है। ये तो चलिए पुराना बनाया गया है और कहते हैं अगले 20 साल में जाने कितने अधिनियम बने हैं और कितने कहते हैं वर्ल्ड लाइफ की बचा लिया गया है जान, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो ये सारे बातें देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो होती सिर्फ अधिनियम बनाई जाती है और इसके बड़े बड़े विभाग बना दिया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग कार्यरत होते हैं और उन्हीं पशु और पक्षियों पर जो है दुनिया से पैसे इकट्ठे करती है और अपना ही जेब भरती है, लेकिन इनके जीवन के लिए संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाई जाती। अगर उठाई जाती है तो आज इतने सारे जो जीव जो संकटमय हो चुके हैं और जो संकटग्रसित हो चुके हैं, शायद संभव ऐसा नहीं होता। The next topic is sustainable development. However, this is an industry, factories and cities, town, road, railway and dams, etc. For development to the governors of all countries will have to replace the natural habitats of plant and animals. Natural resource has been to adopted is gradually, and the day will become when many natural resources will not be available for our future generation, and so it is a high time to think about the maintaining a balance between environment and development so that both
present and the future generation can be derive proper benefit out of this resource, and this can be only achieved by the process of suitable development. There is a most important here, a suitable development. The suitable development here, the mean is there are development of the meet the need of the present generation and the conserved resource for the future generation. And so sustainable or development should be include or reducing excessive use of resource and enhancing resource of conservation and recycle and the use of the best materials and scientific management of the renewable resource, especially bioresource, and planting the more tree, green grass patch to be intercepted between to conserve of buildings and use a more environment friendly material or bio as a degradable materials and use of technologies which as a environmental friendly and based on essence use of the resource. तो यहाँ पर जो आया है सतत पोषणीय परिवर्धन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहते हैं अभी तक हमने चर्चा किया है किस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी अग्र विकास के प्रयोग करते हुए हम जो है विद्यमान प्राकृतिक संसाधन का परिचालन द्वारा स्वयं को अनुकूल पर्यावरण का निर्माण किया है। यानी यहाँ पर जो है लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं। यहाँ तो है इतने इंडस्ट्रीज़ बनाई गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए जिसका कोई विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को अतिदोहन को फलस्वरूप न केवल प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है बल्कि कुछ जो है इस स्थिति में इसे नष्ट भी किया है। आधुनिक उद्योग पर फैक्ट्री, शहर और कस्बे, सड़क और रेल मार्ग, बांधे आदि के कारण पादपों और जंतु की प्राकृतिक आवास परिवर्तन हो चुका है और इस प्रकार धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब इनमें से अधिक हमारी आगामी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अंततः पर्यावरण एवं विकास के भी संतुलन बनाने के विषय में विचार करने के लिए ये अनुकूल समय है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी दोनों को इन संसाधनों का उचित लाभ प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य जो है बहानी और सतपोषणी विकास की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कहा था दोस्तों कि सरकार की तरफ से हर एक योजना बनाई जाती है तो उसमें से सतत पोषणीय परिवर्धन भी एक योजना है जिसके द्वारा जो है भविष्य के लिए बचाए रखने के लिए एक स्पीसीज के रूप में ये चाहती है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे खेल हो रहा है कि ये स्पीसीज बना के क्या करेंगे और कैसे जो है प्रोटेक्शन करेंगे। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे इनको संरक्षित करना संभव ही नहीं है। अब देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास क्या है? यह वह विकास है जो पर्यावरण पीढ़ी और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की संरक्षित रखता है। कहते हैं भविष्य के लिए इसमें हमें पानी, वायु, मृदा और दूसरे अन्य प्राकृतिक साधनों को ठीक उसी तरह से शुद्ध और प्रदूषण रहित रखना चाहिए जैसे कोई पृथ्वी पर पहले ही विद्यमान थे। अब देखिए ये भी बात जो है गलत है क्योंकि हमने कहाँ रखा है, हमने पानी, वायु, मृदा दूसरे चीज़ों को तो अपने राजनीतिक चक्कर में पीस के इनको जो है प्रदूषित कर चुके हैं, पीस के जो है इनको हम बर्बाद कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो सतत पोषणीय विकास में निम्न समावेश होना चाहिए कि संसाधनों को अत्यधिक प्रयोग को कम करना व साधनों को बढ़ाना। देखिए साधनों को बढ़ाया तब जा सकता है जब हम नए विकल्प की तरफ बढ़े। हम तो पुराने विकल्प को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं अवशिष्ट पदार्थों के पुण्य चक्रण व पुण्य उपयोग। कहते हैं अवशिष्ट पदार्थों को पुण्य चक्रण करना। कहते हैं दोस्तों एक बात आपको पता ही होगा कि जो प्लास्टिक जो है कई क्षेत्रों में बैन है, कई क्षेत्रों में जो है इनको उपयोग करना भी मना किया गया है और कहते हैं जहाँ पर एंट्री पॉइंट होती है वहाँ पर लिखा होता है कि जो है ये शहर जो है पॉलीथीन मुक्त है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत आप देखोगे ना तो अगर अंदर चले गए, अगर शहर में चले गए तो हर एक दो कदम पे आपको जो है लिफाफा यूज़ करते हुए इंसान और दुकानदार सब मिल जाते हैं। कहते हैं सरकार की तरफ से एक्शन उठती है जब सरकार के जेब में पैसा कम जाता है तो वो क्या करते हैं, छोटे से रेड़े वाले के पास अगर एक भी लिफाफा मिल गया तो उनके जो है 500 के पत्ता काट देते हैं 2 मिनट में। तो ये सिर्फ क्या है, अगर कोई चीज़ बैन की जाती है तो बैन का मतलब बैन होता है, ना कि उसको धड़ल्ले से उपयोग करने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए शराब भी कई क्षेत्रों में बैन है लेकिन कई क्षेत्रों में जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। कहते हैं जब कोरोना वायरस की थोड़ा सा झूठ दी गई थी तो उसमें सबसे पहले शराब की दुकान खोली गई थी। आखिर क्यों? शराब से क्या ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है? जबकि पहले ही डॉक्टरों ने बता दिया है कि कोरोना वायरस ह्यूमन सिस्टम से बचाया जा सकता है कोरोना वायरस से। लेकिन सबसे पहले जब कोरोना वायरस का थोड़ा सा ढील दिया गया था, लॉकडाउन में ढील दी गई थी, तो सबसे पहले शराब की दुकान धड़ल्ले से खोल दिया गया हर एक राज्य में, और कई राज्य में तो बैन भी है लेकिन वहाँ पर धड़ल्ले से पार्टियों में अगर आप नहीं देखोगे तो जिन्होंने बैन किया है ना उनके पार्टी में जो है शराब धड़ल्ले से बिक रही होती है और लोग पी रहे होते हैं।
ये ज़मीनी हकीकत है जिसको दो राय किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि बहुत से एक्ट बने हुए, बहुत से प्रोटेक्शन चीज़ें बनी हुई है। कहते हैं नवकरणीय संसाधनों को विशेषकर जो जल साधनों का जो है वैज्ञानिक प्रबंधन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। उसके पश्चात अधिक पेड़ लगाना जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कंकड़ी इमारतों के बीच हरी घास के छोटे छोटे जो है भूखंडों को विकसित करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जैव निम्नीकरण, अपमार्जक या पर्यावरण अनुकूल पदार्थों के जो है अधिक प्रयोग करना। देखिए ये सब चीज़ें जो है छोटी मोटी है जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप अपने आसपास कहीं भी एक पौधा भी लगा देते हो ना दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं सरकार की तरफ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें स्वयं जागरूक बनना है, हर एक नागरिक को जागरूक बनना है। और इसके लिए आपको सिर्फ इसमें सोचना नहीं है या मोबाइल से बाहर नहीं निकल जाना है। आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर एक तुलसी के पेड़ लगा दो, नहीं है तो छोटा सा पीपल का पेड़ लगा दो, वो भी नहीं है तो कुछ लताओं को जो है लगा दो। इससे क्या होगा, कम से कम कुछ हरियाली तो रहेगी, कम से संतुष्टि तो आपको मन में मिलेगा ना कि आपके घर के आसपास जो है हरियाली है। तो ये छोटे बड़े पेड़ पौधे लगाने से कहते हैं बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। साधनों के प्रभावी उपयोग आधारित पर्यावरण अनुकूल तकनीक का प्रयोग करना। देखिए बहुत से ऐसे तकनीक है जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।